हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई टू दिसंबर 2026 फॉरकास्ट। रिमेनिंग ईयर हमारा बीत चुका है अंटिल जून। अब देखते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या नई चीज़ें आ रही हैं। सो वी आर गोइंग टू पिक 4 कार्ड्स फॉर ईच ज़ोडिएक फॉर योर हेल्थ, your finances, your relationships and your career. Also, if you like this video, please make sure to let us know in the comment box. We will be waiting for your comments. And do subscribe to our channel. Also follow our Instagram page for more updates. And if you are looking for any personal reading, please make sure to DM us directly on Instagram and we will be right there with you for a personalized reading. So let's start with the reading and देखते हैं आपके लिए जुलाई टू दिसंबर 2026 कैसा रहने वाला है। We are going to start with the fire signs Aries, Leo and Sagittarius. देखते हैं आप लोगों के लिए मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर रिमेनिंग जुलाई टू दिसंबर 2026 कैसा रहने वाला है। सो फायर साइंस, सबसे पहले बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। सो योर फाइनेंसेस इज टेकिंग अ टर्न। आपके लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस जो आपने पहले गलत लिए थे, उन सारे डिसीजंस पे आपको दोबारा गौर करना है और आगे अपने डिसीजंस बेहतर लेने की कोशिश करनी है। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स ख़राब हो गई थी, उनसे आपको कुछ रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। ऑल्सो आई फील दैट यू नीड to stop taking risks. Don't do any partnerships during this period and focus on growing your finances right now. Do not focus on investments, rather just focus on savings and moving ahead. Please stop giving money to your friends and family and just try to utilize the money in the best possible manner. Coming to your health will be very balanced, will be good. You will be able to sleep better. You will be very energetic during July to December and आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से टर्न होने वाली हैं। आप अपनी हेल्थ में पानी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो, अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हो, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। Coming to your relationships, in your relationships you need to spend money on your family, on your partner, on anywhere you are spending your emotional investment. वहाँ पर आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को अपने एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है, गिफ्ट्स देने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग भी समझें कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड फॉर योर करियर यू आर जस्ट सिटिंग एट द एज। अभी आप बहुत फोकस नहीं हो अपने करियर पे, विच ऑल्सो मेक्स सेंस बिकॉज यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द इमोशंस एंड द मॉनिटरी पार्ट दैट यू फील लेस फोकस टूवर्ड्स योर करियर। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग ओम हनुमते का जाप करें। रोज़ शाम को जाप कर सकते हो घी का दीपक जगा के, और उससे आप देखोगे आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर पा रहे हो एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स सी हमारे वाटर साइंस के लिए जुलाई टू दिसंबर 2026 कैसा रहेगा। दिस इज फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो वाटर साइंस, द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ आपको जुलाई टू दिसंबर में एक ऐसा फेज़ आएगा जब आप सोचेंगे कि आप दो जगह पे उलझे हो एंड यू विल नॉट बी एबल टू थिंक क्लियरली। सो आई वुड रिकमेंड you all to wear clear pots, and for removing the toxic people from your life I would recommend you to wear moonstone with black onyx or black tourmaline so that all toxic people go away, because मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत foggy महसूस करोगे, बहुत heavy महसूस करोगे। If you want to invest in these bracelets or you want to invest in these stones, you can go ahead and DM us on Instagram and I'll be right there to help you out in buying those crystals. Now let's talk how your money is going to be from July to December. I feel that you will be moving forward, you will be in a very stable position and you'll be moving forward in terms of your finances. You'll be saving, investing, you'll be in a very good position. But do not waste this on traveling a lot, because I see that after December 2026 you will be needing this money in order to move, in order to upgrade your life, move ahead. Okay, coming to your career is, you have to take a leap of faith in your career because your career is growing right now, and for that you have to make sure that you take your decisions very confidently and you move forward accordingly. Coming to your relationships will be good, but somehow or the other you will find yourself at a very rocky position. ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल ना फील करो अपने रिलेशनशिप में, आप महसूस करो कि चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, एंड यू विल बी कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स।
उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस टाइम. डू नॉट कम इन अ फेज ऑफ कमिटमेंट बिकॉज यू विल नॉट बी थिंकिंग क्लियरली. देयर इज सो मच ऑन योर प्लेट दैट यू विल नॉट बी एबल टू थिंक क्लियरली. आपकी हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना है. अपनी नींद का ध्यान रखना है. ध्यान रखना है कि आप टाइम पे खाना खाएं बिकॉज आपकी रूटीन बहुत हिलने वाली है और आप अपनी मील्स को मिस करोगे. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम इन इन्वेस्टिंग इन योर करियर and investing in your money because the rest can be taken care of later, but do not enter into any commitment. Thank you. Our earth signs Taurus, Virgo and Capricorn. देखते हैं आपके लिए जुलाई टू दिसंबर 2026 कैसा रहने वाला है. So Taurus, Virgo and Capricorn देखते हैं आपके लिए finances कैसे रहेंगे. So for your finances you need to be very careful. आपके अंदर capability है, आप stable position पे खड़े हो, grow कर रहे हो यहाँ से, लेकिन there are people around you who are not happy with your success. तो आप जो कमा रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, जिन भी चीज़ों में आगे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या कुछ भी चीज़ें आप प्लान करके रख रहे हो कि मुझे अभी करनी है, 2 इयर्स बाद करनी है, 5 इयर्स बाद करनी है, उन प्लान्स अपने तक रखो, किसी को मत बताओ बिकॉज आपको बहुत नज़र लगने वाली है. अपने फाइनेंसेस को भी अपने तक रखो. डू नॉट शो टू पीपल दैट यू आर स्टैंडिंग एट अ वेरी स्टेबल पोजिशन राइट नाउ. ओके, कमिंग टू योर करियर, you might be stuck between two options. Should I do this, should I do that, or should I combine both? So ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों चीज़ों में ही इक्वल एफर्ट देने की ज़रूरत है. आपको दोनों चीज़ों में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और आपको अपना पर्सपेक्टिव रूटीन थोड़ा स्विच करने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि अगले 6 महीने में आपको अच्छी नींद मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. द नेक्स्ट 6 months फॉर यू आर गोइंग टू बी हैवी इन टर्म्स ऑफ योर वर्क बिकॉज यू विल हैव टू मैनेज एवरीथिंग. You will have to also take care of your emotions along with your career, and you also will have to make sure that you work in a direction which is very logical. Okay, बहुत लॉजिकल अप्रोच से चलना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है. ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कमिंग टू योर हेल्थ पर्सपेक्टिव, हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है. यू विल बी वेरी एनर्जेटिक इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, but you have to make sure that you also drink a lot of water, eat properly, exercise well, and maintain yourself properly. Okay, in terms of your relationships, you need to have the old school approach towards your relationships. Sit on a hard chair, make sure that you have your rules, regulations set in place so that when you move forward, things work in your favor. You might be investing a lot of emotions in terms of your relationship, but more than that, you need to invest more time in your career, in your growth, and towards your money. Because आपके relationship वाले एरिया में हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है. You need to invest time in your career and towards your money. So all the best. Now let's start with the air signs, Gemini, Libra, Aquarius. देखते हैं आपके लिए जुलाई टू दिसंबर कैसे जाने वाला है. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकला है कार्ड्स में. सो फॉर योर फाइनेंसेस, आई सी दैट you are surrounded with loyal people who support you, who love you, and those people will help you go better in finances. You have all the capabilities and abilities to move forward. आपकी नीयत भी अच्छी है अपने काम को लेकर, लेकिन आप अगर किसी नए काम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा पीरियड है. प्लस आपको बहुत सोच समझ के एक नए काम में इन्वेस्ट करना चाहिए. आप उसमें न्यू हो सकते हो तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको अपने से एक्सपीरियंस लोगों की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रख के आगे नहीं बढ़ना है. हो सकता है आपके कुछ स्टेप्स ऐसे हों जो आपके फेवर में ना चले. सो किसी ना किसी की गाइडेंस ज़रूर ले, स्पेशली ऐसे फ्रेंड्स की जो आपके लिए लॉयल. कमिंग टू योर करियर, यू माइट बी कन्फ्यूज कि आपको कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. आई फील अराउंड सितंबर और अक्टूबर यू विल हैव दैट क्लैरिटी कि आपको कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. अभी अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो आपको पेशेंस रख के आराम से अपने डिसीजंस लेने हैं, प्रॉज एंड कॉन्स को सोच के, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच के, और जितने भी फैक्टर्स आपके काम के आसपास चल रहे हैं उन सबको सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है. अगर आप जॉब करते हैं तो अभी आपको जॉब चेंज नहीं करनी. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप जहाँ पर हैं अभी अपने पैर वहीं पर जमा लीजिए. अभी आपको चेंजेस नहीं लेने हैं. ऑल्सो आई फील इन योर हेल्थ पर्सपेक्टिव चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती हैं. अराउंड द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर योर हेल्थ माइट नॉट बी कम्प्लीटली ओके. सो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट टाइम टू मूव इनटू समथिंग जो आप बिल्कुल चेंज कर लें विद द जॉब पर्सपेक्टिव, बिकॉज एक नई जॉब में आपको काफ़ी मंथ्स यू हैव टू बी ऑन देयर टोज इन ऑर्डर टू प्रूव योर वर्थ टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो राइट नाउ इट्स नॉट अ गुड टाइम with the health perspective to change the job or to change the location.
because your health might not be completely fine. So invest time in your health. If you are obese, you need to really start working on the weight loss journey, because आपकी health आगे बढ़ना खराब हो सकती है. Talking about your relationships, there is one relationship that was going on, probably a long distance relationship, जो शायद खत्म हो गया है, पर अगर आप उससे अभी move on नहीं कर रहे हो, तो now it's high time to move out of that relationship, number one. And if you are planning to enter into a long distance relationship, please do not. It's not a great time for you to enter into a long distance relationship. 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है, एक प्रेजेंट का हो सकता है, एक पास्ट का हो सकता है, जो कि जिस 2 लोगों के बीच में आप कंफ्यूज रहे. आपको अभी दिसंबर तक कोई डिसीजन नहीं लेना है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है. अभी टाइम दें अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को, एंड देन मस्ट. थैंक यू. आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Also follow us on our Instagram, subscribe to our YouTube channel. If you like this video, please make sure to like and comment on this video. And if you are wanting to know more about a particular zodiac or about your career, relationship during July to December, please make sure to comment and we will bring another video for you very soon. For personalized reading, please make sure to check out our number in the description box, and we will get back to you. Please make sure this is our only ID and do not get scammed by anyone else asking you to make the payment.